ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଢେଲସରା ବ୍ଲକ ଲେଫିଲିପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜିକାର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ टीचर ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ देख आमर प्रसंग होची भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट्य। यही विषय आम आज आलोचना करवा। मैंने गोटे चित्र देखा चित्र कहार चित्र कहीपर यह हूँ आम भारत। ये चित्र हूँ आम भारत, आम देश भारतर चित्र अटे। एवं यह कौन यह हूँ आम देशर तिरंगा पताका। यह आमे प्रतिवर्ष अगस्त 15 तारीख एवं जनवरी 26 तारीख दिन यही पताका को उड़े था। देख पिला मैंने किसी प्रश्न दि जाइए, मु प्रथम तो कहीदे तथापि किसी प्रश्न आकार आम आलोचना करवा जे आम देशर नाम कौन। मु कही जानीपरुव जे आम देशर नाम हूँ कौन भारत। आम देशर नाम भारत। आम 2 नंबर क्वेश्चन, आम देश भारत केवे स्वाधीन होता। मु आगर कही आमे प्रतिवर्ष अगस्त मास 15 तारीख दिन पताका उत्तोलन करथौं। कहीं जे आम देश भारत यही दिन स्वाधीन होता 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख दिन 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारीख। देख पिला माने जे आम देश भारत 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारीख दिन स्वाधीन होता। से आम प्रतिवर्ष यही दिन में पताका उत्तोलन करिथां। 3 नंबर क्वेश्चन, जिते बेला आम भारत स्वाधीन हैला ता पूर्वरु आम देश को क्यों माने शासन करुथिले। क्यों माने शासन करुथिले ये कहि परबो जे आम देश को इंग्रेज माने शासन करुथिले। क्यों माने इंग्रेज माने शासन करुथिले। आम देश को इंग्रेज माने शासन करुथिले। तापरे 3 नंबर प्रश्न उत्तर मध्य मु कहि दैछि आगरु जे केबे केबे आम जातीय पताका उत्तोलन करिथाउ। जो मु जो जातीय पताकार जो चित्र देखाइली यही चित्र बा यही जातीय पताका में केबे उत्तोलन करिथाउ। केबे जे 1947 मसीहा जो अगस्त 15 तारीख दिन भारत स्वाधीन होता से ही दिन अगस्त 15 तारीख दिन प्रतिवर्ष आम जातीय पताका उत्तोलन करथौं। एवं अगोटे दिन जनवरी 26 तारीख दिन आम पताकाटी उत्तोलन करथौं। एवं कहीं जनवरी 26 तारीख दिन यही पताका उत्तोलन करथौं ता विषय आम पुंखानुपुंखन भाव आलोचना करवा। देख
ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆମ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ତ ଦରକାର। ବିନା ନୀତି ନିୟମରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦେଶ ରହିଥାଏ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମର ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ନୀତି ନିୟମ ତିଆର କେବେଠାରୁ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ତିଆର କରିଥିଲେ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଏହି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ବିଧାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ, ନମନୀୟ ଏବଂ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ, ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ, ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ଆମ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଛି, ଆମ ଦେଶର ମୌଳିକ ଆଇନ ବା ନୀତି ନିୟମ ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବସସ୍ଥାନ କରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କ'ଣ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ମୌଳିକ ଆଇନ ବଳରେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆଇନ ରହିଛି ଏହି ମୌଳିକ ଆଇନ ବଳରେ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ 1946 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗୋଟେ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ତିଆରି ହେବ, ପ୍ରଣୟନ କଲେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ, ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ପାରିବ ବା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଭା 1946 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରୁ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ବସିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା କେତେ ଦିନ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ ଧରିକରି ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରୁ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख पर्यंत संविधान प्रणयन सभा बसी एवं यही संविधान कौन 1900 जिते तैयार हो गला संविधान टी तैयार हो गला से कौन 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे ताहा कार्यकारी होता कौटी भारत रे एवं पिला माने जे 2 दिन तले आमे कौन विद्यालय मानकरे संविधान दिवस पालन करिथिले काहेकि आम जो संविधान दिवस दिन पालन कला कहीं पालन कर जे 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख दिन यही संविधान टी जो तैयारी होता ताहार कौन से दिन शेष होता एवं सही दिन ही भारतर अधिवासी माने बा भारतर जनसाधारण माने ग्रहण करते संविधान कौन नीति नियम एवं समस्त शपथ करते जे आमे भारतवासी अटू आमे संविधान नीति नियम हिसाब रे भारत को श्रृंखलित भाव में आमे भारत रही बसस्थान करूँ श्रृंखलित भाव में रही शपथ यही दिन 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख दिन दिया से समस्त विद्यालय मानकरे आमे संविधान दिवस पालन करा नवेम्बर 26 तारिख दिन एवं यही जो संविधान प्रणयन करा लागू करा कार्यकारी होता 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन यह कार्यकारी होता से आमे प्रतिवर्ष समस्त सरकारी बेसरकारी विद्यालय विभिन्न अनुष्ठान मानकरे कौन प्रतिवर्ष जनवरी 26 तारिख दिन आम कौन करूँ जातीय पताका उत्तोलन कर बुझिपार पिला मैंने जे आम जातीय पताका केबे प्रश्न थिला जातीय पताका केबे उत्तोलन करिथाऊ केबे जनवरी 26 तारिख दिन कहीं यही दिन जे संविधान जो लिखा जाता जे नीति नियम गुड़ाक ताहा जनवरी 26 तारिख दिन ताहाको कार्यकारी होता से दिन आम जातीय पताका उत्तोलन करिथाऊ ताबरे देख पिला माने जे ए जो संविधान कौन प्रणयन करा संविधान प्रणयन सभार प्रथम अधिवेशन केबे होता डिसेम्बर मास 1900 एटा देख ए नोटा गोटे डबल आसी जाइए नुहे एटा काटी दियो 1946 मसीहा रे यार प्रथम अधिवेशन बसी यही अधिवेशन रे किए सभापतित्व करते सच्चिदानंद सिन्हा यही संविधान प्रणयन सभार जो प्रथम अधिवेशन बसी 1946 मसीहा डिसेम्बर मासरे से सभापति होते तारपरे यही संविधान प्रणयन स्थायी सभापति स्थायी भाव में सभापति भाव में निर्वाचित होते किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख पिला माने ये चित्र को देखा देख ये होती आम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि आम भारतर किए थिले भारतर प्रथम राष्ट्रपति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले भारत प्रथम राष्ट्रपति एवं यही संविधान प्रणयन जो होता ये स्थायी सभापति भाव में नियुक्ति पाइथिले गोटे चित्र तले देख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए एजंती चिठा प्रणयन कमिटीर अध्यक्ष जो संविधान तैयारी होता चिठा प्रणयन करते लिखिले कमिटी जो चिठा प्रणयन करते से कमिटीर कण ड्राफ्टिंग कमिटीर अध्यक्ष रूपे से नियुक्ति पाइथिले किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन कहुए ये संविधान कौन पिता बा संविधान जनक बोली कहुए क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
पिला माने तुम परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे काहाकू संविधान जनक वा पिता कहा जाए उत्तर कौन जे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते भारत संविधान पिता बा जनक ए जो संविधान जो प्रणयन करा जायतिला केते दिन धरी करा जायतिला जे ए संविधान प्रणयन सभा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन कार्यकरी भारत संविधान प्रणयन करथिले केते दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन धरी करी तैयार हेतिला एतकी दिन लागिथिला एई संविधान प्रणयन करिवा पई पिला माने मन रखिबो जे 2 वर्ष 11 मास 18 दिन धरी करी कार्य करथिले एवं संविधान टी प्रणयन करथिले एवं ताहा 1950 मसीहा जानुआरी 26 दिन भारत रे कार्यकारी करिथिले ताबरे देखो पिला माने आम संविधान गोटे प्रस्तावना रही ताहा कोन आमे कोनटू आमे भारतवासी भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र रूपे गठन करने आमे दृढ़ संकल्प नेबा एवं यार नागरिक मान कौन कौन सामाजिक सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करा जो भारत नागरिक मान अछंती से कौन सामाजिक न्याय दिज्व अर्थनैतिक न्याय प्रदान कर राजनीतिक क्षेत्र में न्याय प्रदान करा चिंता अभिव्यक्ति प्रत्यय इत्यादि या प्रस्तावना समानतार सुरक्षा प्रदान करा व्यक्ति मर्यादा और राष्ट्र ऐक्य संहति निश्चित करी सेमानक मध्य भातृभाव उत्साहित करिबा जे भारतर कौन समस्त को समानतार सुरक्षा प्रदान करा समस्त समान व्यक्ति मर्यादा और राष्ट्र ऐक्य संहति को निश्चित करी कौन से मानक मध्य भाई भाई भाव भातृ प्रेम भाव उत्साहित करा ताबरे प्रथम मु कहितली जे ए प्रस्तावना अच्छी जे भारत एक सार्वभौम राष्ट्र समाजवादी राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गणतांत्रिक राष्ट्र और साधारणतंत्र राष्ट्र कहीं भारत एक सार्वभौम राष्ट्र कहीं जे भारत को आभ्यंतरीण एवं बाह्य नियंत्रण रु भारत संपूर्ण भाव में मुक्त ये जिते बेले आम भारत स्वाधीन है ताबरे आम भारत एक सार्वभौम राष्ट्र रूपे परिणत है कहीं जे सार्वभौम कहले कौन आभ्यंतरीण शत्रु मान आम भारत को कब्जा करें नहीं कि बाह्य शत्रु मान आम भारत को कब्जा करें नहीं से भारत एक सार्वभौम राष्ट्र समाजवादी राष्ट्र कहीं भारत एक समाजवादी राष्ट्र कौन पाई जे भारत रे कौन दारिद्र्य दूरीकरण होची गोटे मूल लक्ष्य आमर भारत लक्ष्य कौन मूल लक्ष्य कौन अच्छी दारिद्र्य दूरीकरण आम भारत रे किपरि दरिद्रता रहिबो नाही से भारत को गोटे समाजवादी राष्ट्र कहुए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जे आम भारत रे सबु धर्म समान से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहुए भारत में सबु धर्मर लोक बास करें हिंदू धर्म ख्रीस्टान धर्म सिख धर्म ईसाई मुसलमान जैन बौद्ध समस्त धर्मर लोक भारत में बसवास करें एवं सबु धर्म समान से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहुए भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र कहीं जे जो लोकप्रतिनिधि मान जरिया शासन परिचालित होता है जे लोकप्रतिनिधि माने लोक माने कौन प्रत्यक्ष भाव में लोकप्रतिनिधि को निर्वाचित करते एवं से माने ही आम भारतर कौन भारत को शासन परिचालित
କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କଣ ଯେ ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ଆମ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ। ସେ କଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନୀତିରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବଂଶ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ଯଦି ଶାସନ କରିବ ପୁଣି ସେ ରାଜା ଯଦି ମରିଯିବ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତ ତାର ପୁଅ ରାଜା ହଉଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ଯଦି ପୁଣି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ତାର ପୁଅ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ରାଜା ହଉଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମ ଭାରତ କଣ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଥିବାରୁ କଣ ନିର୍ବାଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଦେଶର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟିଏ संविधान अच्छी जा भारत एक लिखित संविधान थे जो भारत जो 3 वर्ष 11 मास 18 दिन धरिक जो संविधान प्रणयन कौन लिखित भाव में प्रणीत अच्छी से कौन जहाँ लिखित संविधान कहुए जे भारत में जो समय राजनीति करुले 1935 मसीहा शासन खसड़ा को विश्लेषण करा एवं यही बृहत्तम संविधान टी प्रणयन करा एवं अन्य देशर संविधान को विश्लेषण करी मध्य कौन यही संविधान टी तैयारी करा एवं यही संविधान रे 395 टी धारा 8 टी अनुसूची एवं 22 टी भाग रही पड़ो जे आम संविधान रे केतोटी धारा केतोटी अनुसूची एवं केतोटी भाग थिला तर कौन 395 टी धारा 8 टी अनुसूची एवं 22 टी भाग रही एवं युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान रे 60 टी धारा रही। देख पिला माने एटा जमनीय नमनीय हम भारत संविधान को कौन संविधान संशोधन प्रणाली अनुसार संविधान को कौन 2 भाग में विभक्त कर गोटे हूँ नमनीय संविधान एवं अनमनीय संविधान है। भारतीय संविधान रो संशोधन प्रणाली कौन जटिल एवं एक निर्दिष्ट पद्धति रे संशोधन करा जाय ताहाको कौन अनमनीय संविधान कहा जाए ताहाको जे आम भारत संविधान संशोधन करा जाय मध्य एवं एई संविधान संशोधन प्रणाली जटिल अटे एवं निर्दिष्ट पद्धति अनुसार संशोधन करा जाय ताहाको अनमनीय संविधान कहा जाए एवं जो संविधान संवैधानिक आईन एवं साधारण आईन संशोधन प्रणाली टिके पार्थक्य रही है एवं यार संशोधन प्रणाली सरल और सहज ताको नमनीय संविधान कहुए नमनीय संविधान एवं अनमनीय संविधान जान जे जो संविधान रे संशोधन प्रणाली जटिल ताको अनमनीय संविधान कहुए एवं जो संविधान रे संशोधन प्रणाली सरल ताकू नमनीय संविधान कहुए। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था परिचालित होता है जे देख पिला माने ए चित्र ये अच्छी
भारत पार्लियामेंट एवं गोटे संसदीय शासन व्यवस्था रे दुई जन मुख्य था किए किए जड़े राष्ट्रपति एवं अन्य जड़े किए प्रधानमंत्री किए जड़े होती राष्ट्रपति एवं अन्य जड़े प्रधानमंत्री किए यही राष्ट्रपति होती नामक मात्र राष्ट्र मुख्य एवं प्रधानमंत्री होती वास्तव रियल रे से कौन शासन कार्य परिचालित करथांती एवं कौन से प्रधानमंत्री होती वास्तव कौन राष्ट्र मुख्य एवं राष्ट्रपति होती नामक मात्र राष्ट्र मुख्य गोटे संसद शासन व्यवस्था कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका मध्य सुसंपर्क प्रतिष्ठा होता है कहीं जे संसद शासन व्यवस्था कौन जिते बेले गोटे आईन टी व्यवस्थापिका रे कौन तैयारी होता है कार्यकारी करा जाए कार्यपालिका काम हो कार्यकारी करवा से कौन कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका मध्य सुसंपर्क प्रतिष्ठा होता है ताबरे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल से शासनगत कार्य संसद कौन निम्न सदन तथा भारत लोकसभा भारत में दुईटी सभा अच्छी गोटे राज्यसभा एवं लोकसभा यही लोकसभा निकट में उत्तरदायी होता है जितेबले प्रधानमंत्री एवं मंत्री और विभिन्न मंत्री माने थांती से मध्य शासनगत कौन कार्य रही शासन किपरि परिचालित करेंगे से लोकसभा निकट में उत्तरदायी होती एवं मंत्री परिषद कार्यकाल केते वर्ष 5 वर्ष ए निम्न सदन संख्यागरिष्ठ समर्थन पर निर्भर करता है जे 5 वर्ष हो गला परे पुणी निर्वाचित होते एवं कौन कौन पुणी जितने निर्वाचित होते संख्यागरिष्ठता दल जो दल संख्यागरिष्ठता बेसी संख्या करते से दल कौन लोकप्रतिनिधि होते एवं कौन शासन कार्य परिचालना करते एवं साधारणतः संख्यागरिष्ठ दलर नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति दिखाती संख्यागरिष्ठ दलर नेता जी होते कौन राष्ट्रपति कौन करते प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति देते भारत हूँ गोटे संघ केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था भारत हूँ गोटे कौन भारत में केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था प्रचलन भारत एक संघीय राष्ट्र यही संघीय राष्ट्र रे विभिन्न लक्षण मान देखा जाए कौन जे भारत एक लिखित अनवीन संविधान भारत संविधान गोटे लिखित संविधान अटे एवं यह अनमनीय संविधान कहीं जे यार संशोधन प्रणाली जटिल से अनमनीय संविधान कहुए एवं द्वैत शासन दिन अच्छी कौन द्वैत शासन कहले कौन जे भारत में गोटे केन्द्र स्तर में शासन कार्य परिचालित होते एवं गोटे राज्य स्तर में शासन कार्य परिचालित होते से यह द्वैत शासन कहुए केन्द्र एवं राज्य मान मध्य क्षमता बंटन करा जायते केन्द्र एवं राज्य मध्य जो कौन संपर्क रही एवं तांको मध्य किसी क्षमता दि जाते भाग बंटन करा जायते जे किए क्यों काम करेंगे क्यों क्यों मंत्री रे यही भाव में क्षमता बंटन करा जायते एवं स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय यह हूँ संघीय व्यवस्था केतेक लक्षण मान से भारत को यही लक्षण गुड़ाक थिबारु भारत को एक संघीय राष्ट्र कहुए ताबरे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहीं जे मु आगर कही जे भारत में
कौन सी निर्दिष्ट राष्ट्रीय धर्म नहीं समस्त धर्मर लोक माने भारत रे बास करती से माने भारतर अधिवासी माने जे कौन सी धर्म ग्रहण कले मध्य एवं प्रचार कले मध्य कौन तांको पई किछि आईन नहीं जे समस्ते जे जो धर्म ग्रहण करि परिबो जे जो धर्म प्रचार करि कले मध्य किछि असुविधा नहीं से भारत एक निरपेक्ष राष्ट्र भारत संविधान मौलिक अधिकार 25 धारा 28 धारा मध्य भारत जो मौलिक अधिकार रही 25 धारा कौन 28 धारा मध्य धर्मगत अधिकार दि जे भारत संविधान जो केतोटी मौलिक अधिकार पढ़ा यही अधिकार रही अधिकार मध्य कौन 25 धारा 28 धारा मध्य धर्मगत अधिकार रही भारत में समस्त धर्म हिंदू धर्म सिख धर्म इस्लाम धर्म मुसलमान क्रिश्चियन सबु धर्मर लोक मैंने बास करते समस्त लोक बास करते कौन सी भेदभाव नहीं समस्ते सब धर्म ग्रहण करें से कौन 1976 मसीह संविधान 42तम संशोधन अनुसार संविधान प्रस्तावना रे भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोली उल्लेख कराई एवं राष्ट्र कौन सी धर्म विरोधाचरण करे नहीं जे कौन सी धर्म ग्रहण कले मध्य राष्ट्र ताकू विरोध करे नहीं समस्ते सबु धर्म ग्रहण करि परिवे। अरे देख मु कहितली जे मौलिक अधिकार भारत रे केतोटी मौलिक अधिकार रही भारतर नागरिक मानक पई कौन अधिकार रही जे भारत संविधान तृतीय परिच्छद रे 12 धारा ठारू 35 धारा मध्य 12 धारा ठारू 35 धारा मध्य 7 गोटी मौलिक अधिकार प्रदान करा जायथिला। भारत संविधान तृतीय परिच्छद रे 12 धारा ठारू 35 धारा मध्य केतोटी मौलिक अधिकार प्रदान करा जायथिला 7 गोटी मौलिक अधिकार प्रदान करा जायथिला किंतु मात्र 1978 मसीह 44तम संविधान संशोधन व्यवस्था अनुसार जो 7 गोटी मौलिक अधिकार थिला सेथिरु कोन संपत्तिगत अधिकार को एई मौलिक अधिकार बाद दिया तेणु भारतीय नागरिक मानक पई वर्तमान 6 गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करछंती। भारतीय नागरिक माने वर्तमान 6टी अधिकार उपभोग करछंती कौन समानता अधिकार स्वाधीनता अधिकार शोषण विरोधी अधिकार धर्मगत स्वाधीनता अधिकार सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार संवैधानिक प्रतिकार अधिकार यही 6टी अधिकार कौन कौन भारतीय नागरिक माने उपभोग करछंती। ताबरे यही अधिकार गुड़िक कौन भारतीय देशर भारतर स्वार्थ दृष्टि नियंत्रण कर प्रकृत अर्थ देखा गले कौन भारतीय नागरिक माने प्रथम 5 जो अधिकार अच्छी ए प्रथम 5 गोटी अधिकार उपभोग करते कौन सी परिस्थिति सरकार किंबा कौन सी व्यक्ति विशेष जदि यही अधिकार को हस्तक्षेप कर कौन संवैधानिक प्रतिकार अधिकार बल जड़े व्यक्ति कौन न्यायालय आश्रय नहीं पार संवैधानिक प्रतिकार अधिकार बल कौन जड़े व्यक्ति न्यायालय को दे पार तार आश्रय नहीं पार यही जो संविधान जो अधिकार गुड़ाक अच्छी यही अधिकार विषय किसी जदि कौन किसी हस्तक्षेप किए जदि हस्तक्षेप करे न्यायालय आश्रय नि पार सर्वोच्च न्यायालय कि उच्च न्यायालय गुड़िक कौन यही अधिकार सुरक्षा करने संवैधानिक प्रतिकार अधिकार जरिए व्यवस्था करा जायछि एवं 2002 मसीह संविधान संशोधन करा जाय धारा 21 क रे 6 रु 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा मौलिक अधिकार एक अंश ग्रहण बोली ग्रहण करा जायछि जे समस्त शिशु
ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ କଣ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଫ୍ରିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦିଆଯିବ, ଫ୍ରିରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଫ୍ରିରେ ବହିପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେହି ଅପାଠୁଆ ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏହା ଥିଲା ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କାହିଁକି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ 1 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କିଏ କେବେ ଦେବ କୁହ? ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ? ଇରା ଲଗା କମନ ସ୍କୁଲ, ଇରା ଲଗା କମନ ସ୍କୁଲ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି? ବସନ୍ତି କଲୋନୀ କୁହ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି? କମନ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସେଇଦିନ କଣ ଆମେ କୁହ ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ। କେବେଠାରୁ? ମାଇକ ଅନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଟିକେ ଅନ୍ କର। ବେସା ସ୍କୁଲ କୁହ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି? ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ କଣ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ। 2 ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବେ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି କିଏ ହୋଇଥିଲେ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सुंदर, बहुत भाव उत्तर देते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होती संविधान प्रणयन सभार स्थायी सभापति। 3 नंबर संविधान पिता क्या कहुए? बहुत सहज प्रश्न। संविधान पिता आम क्या कहीता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत सुंदर उत्तर। तुम ताली देवा टिके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होती संविधान पिता। नेक्स्ट आम देश राष्ट्र मुख्य किए? लंबोदर हाई स्कूल। आम देशर राष्ट्र मुख्य लंबोदर हाई स्कूल। शीघ्र कह, समय बहुत कम। लंबोदर हाई स्कूल, स्कूल बेड़ाबाल। माइक राष्ट्र मुख्य आम देश राष्ट्र मुख्य राष्ट्रपति। वेरी गुड, बहुत सुंदर उत्तर। राष्ट्रपति होती आम राष्ट्र मुख्य। 5 नंबर आमर संविधान आमको केतोटी मौलिक अधिकार प्रदान करती? केतोटी मौलिक अधिकार प्रदान करती संविधान? 6टी। वेरी गुड, 6 बर्तमान 6टी। आग 7टी थिला संपत्तिगत अधिकार को बाद दी। बर्तमान 6टी अधिकार प्रदान कर जो संविधान संशोधन प्रणाली सरल सहजता क्यों संविधान कहुए? जो संविधान संशोधन प्रणाली सहज क्यों संविधान कहुए? वीरमुत्रपुर गार्लस स्कूल। अनमनीय संविधान। वेरी गुड, अनमनीय संविधान।
जो संविधान प्रणाली सरल एवं सहजता को नमनीय संविधान अनमन कौन अनमनीयता अच्छी कठिन जटिल यही सरल एवं सहज को नमनीय संविधान कहुए। 3 नंबर देख संविधान प्रणयन सभार प्रथम अधिवेशन डैश मसीह बसी संविधान प्रणयन सभार प्रथम अधिवेशन केते मसीह बसी डैश मसीहा 1950 मसीहा भूल 1940 मसीहा डिसेम्बर 9 1950 मसीह कार्यकारी होता 1940 मसीहा डिसेम्बर 9 तारीख बसी सभा बसी 2 नंबर संविधान प्रणयन सभा डैश दिन कार्यकारी भारत संविधान प्रणयन करते संविधान प्रणयन सभा हाँ कह 2 वर्ष 11 मास 18 दिन वेरी गुड 2 वर्ष 11 मास 18 दिन धरी कार्यकारी प्रणयन सभा बसी 3 नंबर जो संविधान संशोधन प्रणाली जटिल वर्तमान कही डैश संविधान कहुए जो संविधान संशोधन प्रणाली जटिल अनमनीय 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 संविधान वेरी गुड अनमनीय संविधान गोटे संसदीय शासन व्यवस्था डैश जन मुख्य था केते जन मुख्य था गोटे संसदीय शासन व्यवस्था केते जन मुख्य था वीरमित्रपुर गार्लस स्कूल भेड़ाबाला स्कूल केते जन मुख्य था सरल प्रश्न बहुत सरल आम भारत केते जन था 2 जन वेरी गुड जड़े राष्ट्रपति एवं और जड़े प्रधानमंत्री डैश रु डैश वर्ष बयस पर्यंत समस्त शिशु को मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा दि जाए बर्तमान कही 6 रु 14 वर्ष वेरी गुड 6 रु 14 वर्ष वेरी गुड 6 रु 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा दि जाए बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद ताबरे तो भाई गोटे गृह कार्य अच्छी देख पे जे 29 जो राज्य अच्छी ए राज्य कौन अक्षर चार्ट रु लिख ओ बी झा ना सी के जा प ता क आ म आ छ त्री अ हि म गो उ ह उ गु म रा प मी मे ते इला गोटे प्रथम आम राज्यर कौन कौन 29 जो राज्य अच्छी प्रथम अक्षर को नहीं अक्षर चार्ट तैयार कर लिखि कौन खाता लिख एवं निजे बाहर कर ठीक अच्छे जो मैंने यही विषयटी को पुंखानुपुंख भाव में बुझीथ बोली मोर आशा कहीं तुम्हें बहुत सम्यक भाव में यार प्रश्नमालार उत्तर देच से तुम कौन धन्यवाद।